नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना काबीना में तोसी, 3 कायदीन ने लिया हलफ, मुसलमानों को फिर कर दिया गया नज़रअंदाज। मैं मोदी के स्कूल और चंद्रबाबू नायडू के कॉलेज में पढ़ा हूँ, अब राहुल गांधी के पास काम कर रहा हूँ, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। दिल का दौरा पड़ने से बीआरएस एमएलए गोपीनाथ का हुआ इंतकाल, पार्टी कायदीन व कारकुनान में गम की लहर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने पेश किए खिराज। एमएलए मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल पर केसीआर रो पड़े और अफराद ख़ानदान को दिया पुरसा। हमने एक अच्छे कायद को खो दिया, गोपीनाथ के इंतकाल पर केटीआर का बयान। चंद्रबाबू नायडू ने भी पेश की ताज़ियत। तेलंगाना के मेडीगड्डा बैरेज में 6 नौजवान गर्क, शादी का घर मातम में तब्दील। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने राजभवन में मुनक़िदा एक पुरविकार तकरीब में 3 नए वज़रा को हलफ दिलाया। जिन शख्सियात ने वज़ारत का हलफ लिया, इनमें ए लक्ष्मण कुमार, वी श्रीहरि और विवेक वेंकट स्वामी शामिल है। इस मौके पर रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, कानून कौंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी, असम्बली स्पीकर गड्डम प्रसाद, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी समेत दीगर वज़रा मौजूद थे। వాకిటి శ్రీహరి అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయతను చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాలని శ్రద్ధతో అంతఃకరణ శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం గాని పక్షపాతం గాని రాగద్వేషాలు గాని లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను అని నేను వాకిటి శ్రీహరి అని నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చిన లేదా నాకు తెలియవచ్చిన ఏ విషయాన్ని నా కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహించేందుకు అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా గాని పరోక్షంగా గాని ఏ వ్యక్తికి లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా పవిత్ర హృదయంతో ప్రమాణం చేస్తున్నాను. I, Dr. Gaddam Vivek Venkat Swami, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Telangana, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Gaddam Vivek Venkat Swami, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Minister for the state of Telangana, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. అనే నేను అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ అనే నేను శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని సమగ్రతను కాపాడుతానని, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధతో అంతఃకృత శుద్ధితో నిర్వహిస్తానని, భయం కానీ పక్షపాతం కానీ రాగద్వేషాలు కానీ లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని శాసనాలను అనుసరించి ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను అని నేను అడ్డూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రిగా నా పరిశీలనకు వచ్చినా లేదా నాకు తెలియవచ్చినా ఏ విషయాన్ని కర్తవ్యాలను సక్రమంగా నిర్వహిస్తానని, అవసరమైన మేరకు తప్ప ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ ఏ వ్యక్తికి
లేదా వ్యక్తులకు తెలియపరచనని లేదా వెల్లడించనని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग मीटिंग में वज़ीर आज़म मोदी से अपनी गुफ्तगू का जिक्र करते हुए कहा कि मैं मोदी के स्कूल में पढ़ा, चंद्रबाबू नायडू के कॉलेज में तालीम हासिल की और अब राहुल गांधी के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के मुख्तलिफ सुदूर के साथ इनके ज़ाती ताल्लुकात हमेशा खुशगवार रहे हैं। నేమన్నా నీతి ఆయోగ్లో పాల్గొన్నప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారితో మధ్యాహ్నం భోజన వేదిక మీద కూర్చున్నప్పుడు వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూపించి ఆప్కే సాథీ ఇద్దర్ హే అని అంటే నేను చెప్పా, నేను స్కూల్ మీ దగ్గర చదువుకున్నా, కాలేజ్ ఆయన దగ్గర చదువుకున్నా, ఇప్పుడు ఉద్యోగం రాహుల్ గాంధీ గారి దగ్గర చేస్తున్నా. जुबली हिल्स के बीआरएस रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ का 63 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। इन्हें 5 जून को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर गच्चीबौली के AIG अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर ने बताया कि दिल की धड़कन बंद होने के सबब फौरी CPR के ज़रिए दिल को दोबारा चलाने का अमल किया गया और इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, ताहम वो जानबर ना हो सके। इतवार की सुबह 5:45 पर इनका इंतकाल हो गया। बताया गया कि वो काफ़ी अरसे से गुर्दों की बीमारी में मुब्तला थे और 3 माह कबल भी अस्पताल में दाखिल रहे थे। गोपीनाथ 3 मरतबा MLA मुंतखब हुए। उन्होंने 1982 में NTR से मुतासिर होकर TDP में शमूलियत अख्तियार की थी और 2014 में पहली बार MLA मुंतखब हुए। बाज़ वो 2018 में TRS अब की BRS में शामिल हो गए और लगातार 3 बार इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। 2022 में इन्हें BRS का हैदराबाद ज़िला सदर भी मुकर्रर किया गया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स के BRS MLA मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने भी मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ ने निचली सतह से उभर कर एक मजबूत लीडर की हैसियत हासिल की थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपने वज़रा के हमरा मरहूम का आखिरी दीदार भी किया। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इतवार की सुबह इंतकाल कर जाने वाले पार्टी MLA मागंटी गोपीनाथ को खराज अक़ीदत पेश किया। KCR ने मादापुर में वाक़ गोपीनाथ की रिहायशगाह पहुँचकर इनके जज्ज़े खाकी पर फूल निछावर किए। गोपीनाथ के इंतकाल पर KCR जज्बाती हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाज़ उन्होंने सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की और गहरे रंजो गम के साथ ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर BRS के दीगर सरकर्दा क़ायदीन भी मौजूद थे, जिनमें वर्किंग प्रेसिडेंट KTR, हरीश राव, पद्मा गौड़, D श्रावण और P अजय कुमार समेत कई अहम क़ायदीन ने मरहूम MLA को आखिरी खराज अक़ीदत पेश किया। गोपीनाथ गारू तेलंगाना काबीना में इतवार के रोज़ 3 नए वज़रा को शामिल किया गया, जिनमें G विवेक वेंकट स्वामी, लक्ष्मण कुमार और V श्रीहरि शामिल है। ताहम एक बार फिर किसी मुसलमान को वजारत में जगह ना मिलना शदीद नाराज़गी का सबब बन गया है। रियासत में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी के बावजूद इन्हें नुमाइंदगी ना दिए जाने पर मुस्लिम बरादरी में गम और गुस्से की लहर है। कांग्रेस ने इस तोसी में SC और BC तबक़ात को तरजीह दी।
लेकिन मुसलमानों को नज़रअंदाज कर दिया। पार्टी का मौक़िफ़ है कि काबीना में सिर्फ वही शामिल किए जा रहे हैं जो असेंबली में मुंतखब हुए, जबकि कांग्रेस के टिकट पर कोई भी मुसलमान MLA कामयाब नहीं हुआ। ताहम अवाम और दीगर कायदीन का कहना है कि MLC के ज़रिए मुसलमानों को मुंतखब करके नुमाइंदगी दी जा सकती थी, मगर गुज़िश्ता 17 माह से कोई भी मुसलमान को वज़ीर नहीं बनाया गया, जिस पर मुस्लिम तंजीमों ने वादा खिलाफ़ी और इम्तियाज़ी का इल्ज़ाम आयद किया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने जुबली हिल्स के MLA मागंटी गोपीनाथ के अचानक इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गोपीनाथ ने अपने सियासी सफ़र की शुरुआत तेलुगु देशम पार्टी से की थी और पार्टी की तरक्की में अहम किरदार अदा किया था। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि गोपीनाथ एक मुखलिस, मेहनती और अवामी खिदमतगुजार लीडर थे। इनके इंतकाल से रियासत को एक काबिल और बासलाहियत रहनुमा से महरूमी हुई है। उन्होंने मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की और इनके लिए सब्र की दुआ की। BRS के वर्किंग सदर KTR ने कहा कि पार्टी के सीनियर रहनुमा व जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल पर पार्टी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा है। KTR ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि मेरे भाई नरम मिजाज और हमदर्द शख्सियत के मालिक थे, आज सुबह हमसे जुदा हो गए। कहा हमने एक वाकई अच्छे लीडर को खो दिया है। KTR ने कहा कि मागंटी गोपीनाथ ने हैदराबाद की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। హైదరాబాద్ జిల్లా BRS పార్టీ అధ్యక్షులు సీనియర్ శాసనసభ్యులు జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గం నుండి వరుసగా 3 సార్లు శాసనసభ్యుడిగా గెలుపొందడమే కాకుండా హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధిలో ఒక ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన మృదు స్వభావి మా సోదరుడు శ్రీ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు గత కొద్ది కాలంగా అస్వస్థతగా ఉన్న విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలిసిందే. ఇవాళ ఉదయం వారు హాస్పిటల్లో మరి మృతి చెందిన విషయం కూడా మాకు ఉదయమే డాక్టర్ల ద్వారా తెలిసింది. నిజంగా ఇది BRS పార్టీకి అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో అభివృద్ధిని, అదేవిధంగా హైదరాబాద్ నగరంలో ఇక్కడ ఉన్న అందరితో కలివిడిగా ఉండే ఒక నాయకుడిని కోల్పోవడం అనేది అందరికీ కూడా తీవ్రమైన ఆవేదనని, తీవ్రమైన బాధని కలిగిస్తున్న సందర్భం. మీడియాని అదేవిధంగా మిగతా మా కార్యకర్తల్ని కూడా కోరేది, ఈరోజు వాళ్ళ గోపీనాథ్ గారి కుటుంబ సభ్యుల ఆలోచన మేరకు ఈరోజే అంత్యక్రియలు, అంతిమ సంస్కారాలు మొత్తం ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకు మరి ముందుకు పోతున్నాము. మధ్యాహ్నం 4:30 నుంచి రాహుకాలం వస్తుందని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ రాహుకాలం కంటే ముందే అంతిమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కుటుంబ సభ్యుల కోరిక మేరకి జూబ్లీ హిల్స్లోని మహాప్రస్థానంలో మధ్యాహ్నం 3 నుంచి 4 గంటల మధ్యన ఈ కార్యక్రమం పూర్తవుతుంది. ఎవరైనా కార్యకర్తలు కానీ, నాయకులు కానీ, మిగతా వారి అభిమానులు కానీ చివరిసారి వారికి నివాళులు అర్పించాలి అంటే వారు ఇక్కడ వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని కలవడానికి, అదేవిధంగా వారికి నివాళులు అర్పించడానికి ఇక్కడ వారి స్వగృహం దగ్గర ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఊరేగింపుగా బయలుదేరి స్ట్రైట్గా మహాప్రస్థానానికి వెళ్ళి 4 గంటల లోపల రావుకాలం రాకముందే కార్యక్రమాలు చేయాలని వారి కుటుంబ సభ్యులు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకున్నారో దానికి అనుగుణంగా ముందుకు పోతాం. మా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అందరూ కూడా సహకరించాలని, మీడియా కూడా సహకరించాలని దయచేసి సహకరించాలని చెప్పి కోరుతూ, మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామని చెప్పి ఇప్పుడే చెప్పింది, వారికి కూడా ధన్యవాదాలు. మరి ఈ అంతిమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా గౌరవప్రదంగా జరిగే విధంగా దయచేసి వచ్చిన వారికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా అందరం కూడా సహకరిద్దామని చెప్పి కోరుతూ, ఇక్కడ స్థలం కూడా తక్కువ ఉంది, అందుకే కొద్దిగా వచ్చిపోయే వాళ్ళకి, వచ్చిపోయే వీఐపీలకు కూడా మనం కొద్దిగా వారికి సమయం ఇచ్చి వారికి మార్గం కూడా చేసే విధంగా మీరందరూ కూడా సహకరించాలని కోరుతున్నాం. జోహార్ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, జోహార్ మాగంటి గోపీనాథ్ గారు, మాగంటి గోపీనాథ్ గారు.
तेलंगाना के भोपालपल्ली ज़िले में महादेवपुर मंडल के मेडीगड्डा बैरेज के करीब एक अफसोसनाक वाक़े में 6 नौजवान दरियाए गोदावरी में डूबकर हलाक हो गए। ये तमाम नौजवान एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद तफरी के लिए नहाने गए थे। एक नौजवान के डूबने पर दूसरों ने इसे बचाने की कोशिश करते हुए अपनी भी जान की बाजी हार गए। पुलिस के मुताबिक दरियाए गोदावरी में पानी के तेज़ बहाव और बैरेज में मरम्मत के बायस बने गड्ढों की वजह से ये हादसा पेश आया। रेस्क्यू टीमें मौके पर काम कर रही है, जबकि वज़ीर डी श्रीधर बाबू और ज़िला कलेक्टर ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए ओहदेदारों को रेस्क्यू ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत दी। गर्क होने वालों की शनाख्त मधुसूदन 18 साला, शिवा मनोज 15 साला, रिक्षित 13 साला, के सागर 16 साला, पांडु 18 साला और राहुल 19 साला के तौर पर की गई है। ईद उल अज़हा भैंसा शहर के अलावा अतराफ अकनाफ में बहुत ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। भैंसा के तारीख़ी में क़दीम ईदगाह पर नमाज ईद की अदायगी के लिए हज़ारों की तादाद में मासूम बच्चे, नौजवान तबका और मुअम्मर अफराद जमा हुए, जहां नमाज ईद उल अज़हा सुबह 8 बजे हाफिज़ मुनीरुद्दीन इमाम व ख़तीब जामा मस्जिद ने पढ़ाई और बयान व खुतबा ईद के अलावा रिक़त अंगेज़ दुआ मौलाना शाहिद गुफ़रान क़ासमी मोहतमिम दारुल उलूम जामिया अरबिया ने की। अलावा अज़ी भैंसा के मुख्तलिफ़ मसाजिदों में भी नमाज ईद अदा की गई, जिनमें मस्जिद पंजशाह, मदीना मस्जिद, मस्जिद महबूबिया अहाता दारुल उलूम जामिया अरबिया, मस्जिद दरगाह शरीफ, मस्जिद बिलाल, मस्जिद मोमिनान, मस्जिद हाजी साहब, काली मस्जिद, मस्जिद मोहम्मद अली ख़ान, मस्जिद जाबिर और मस्जिद एक मीनार के अलावा जमात अहले हदीस की जानिब से सिद्दीक़ फंक्शन हॉल में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी की गई। नमाज ईद के फ़ौरन बाद मुसलमानों ने सुन्नत इब्राहिमी पर अमल आवर करते हुए क़ुरबानी के अमल को अंजाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह भैंसा ईदगाह पर नमाज ईद उल अज़हा अदा की गई है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलम इस्लाम को खुसूसियत के साथ और हमारे अपने मुल्क के अंदर अमन व सलामती नसीब फरमाएँ और हर किस्म की आफ़ियतें नसीब फरमाएँ। मुल्क के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुकम्मल तौर पर आफ़ियतें अता करें, चूँकि ईद उल अज़हा एक ईसार और क़ुरबानी का नाम है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम पर हम अपनी तरफ से क़ुरबानी पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये अमल बड़ा पसंदीदा है। इस वक्त चूँकि इस बात का हम ख्याल रखें कि अल्लाह की ज़ात बड़ी पाक साफ़ सुथरी है और वो इस बात का हुक्म देते हैं कि अहले ईमान भी सफाई सुथराई का खुसूसियत के साथ एहतमाम करें और रास्तों का ख्याल रखें। और क्योंकि क़ुरबानी करना वाजिब है, ईज़ाए मुस्लिम और ईज़ा देना हराम है, इस बात का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इस अमल को कबूल फरमाए। इस मौके पर चूँकि काफ़ी अच्छे कुशादा इंतज़ाम किए गए हैं ईदगाह कमेटी का और इसी तरह तमाम के तमाम महकमों का, तमाम ही अहले ईमान ने और खुसूसियत ने ईदगाह कमेटी ने शुक्रिया अदा किया है। अल्लाह ताला खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए। नामपल्ली नुमाइश मैदान में रिवायती मछली में दम्मे की दवा की तकसीम का आगाज़ हो चुका है। ये कल भी जारी रहेगा। दम्मे के मर्ज़ में मुब्तला अफराद के लिए ये इलाज रिवायती तौर पर जाना जाता है। इस प्रोग्राम में वज़ीर पुन्नम प्रभाकर, राज्यसभा रुकन अनिल कुमार यादव, फिशर्स कॉरपोरेशन चेयरमैन मिट्टू साई कुमार, मधु याक्षी गौड़ और कर्नाटक के MLC मंजुनाथ ने शिरकत की, जबकि आवाम की बड़ी तादाद भी यहाँ पहुँचकर इस्तिफ़ादा हासिल कर रही है। कृपया करके ध्यान दीजिए, सभी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आना है।
उत्तर प्रदेश के ज़िले गाज़ीपुर में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस करने के दौरान झगड़े में दुल्हा राकेश राम की जान चली गई। वाक़या जगदीशपुर गांव में 4 जून को पेश आया, जहां जयमाला से कबल लड़की वालों और बारातियों के दरमियान तकरार हो गई। दूल्हे के वालिद ने मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की वालों की तरफ से पप्पू और विशाल नामी नौजवान ने इन पर हमला कर दिया। राकेश अपने वालिद को बचाने आया तो इस पर भी तशद्दुद किया गया, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हो गया। इसे वाराणसी के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो 6 जून को दम तोड़ गया। पुलिस ने विशाल नामी मुलजिम को गैर कानूनी असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। वाक़े की एक वीडियो भी वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स को पिस्तौल लहराते देखा जा सकता है। आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना काबीना में तोसी, 3 कायदीन ने लिया हलफ, मुसलमानों को फिर कर दिया गया नज़रअंदाज। मैं मोदी के स्कूल और चंद्रबाबू नायडू के कॉलेज में पढ़ा हूँ, अब राहुल गांधी के पास काम कर रहा हूँ, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। दिल का दौरा पड़ने से बीआरएस एमएलए गोपीनाथ का हुआ इंतकाल, पार्टी कायदीन व कारकुनान में गम की लहर है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर ने पेश किए खिराज। एमएलए मागंटी गोपीनाथ के इंतकाल पर केसीआर रो पड़े और अफराद ख़ानदान को दिया पुरसा। हमने एक अच्छे कायद को खो दिया, गोपीनाथ के इंतकाल पर केटीआर का बयान। चंद्रबाबू नायडू ने भी पेश की ताज़ियत। तेलंगाना के मेडिगड्डा बैरेज में 6 नौजवान गर्क, शादी का घर मातम में तब्दील। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे रेज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।